हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टूडेज वीडियो। क्लास 10th स्टूडेंट जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे कुछ वजह से, या फिर जो ऑनलाइन क्लास किए हैं और उसका फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इमेज फॉर्मेशन तक का वीडियो मैंने बना दिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस और कुछ न्यूमेरिकल को जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेट्स वी डिस्कस व्हाट साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन्स। देन स्टूडेंट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंस, convex and concave. In both lenses, it doesn't matter what is the type of lens. In both lenses, the rules of sign convention will be same. And what is the rules? Then the rules are, in the direction of incident ray, distances are positive, means in this direction, and in the opposite direction of incident ray, distances are negative. And one thing you have to keep in mind, all distances must be measured from the optical center. So student, now we will discuss in convex lens which distance is negative and which one is positive. Let me suppose that focal length. Then you all observe that the principal focus of convex lens in this side, if the incident ray comes from this side, then it is positive. तो आप इसको सिंपली भी याद रख सकते हैं कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव डिस्टेंस और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव डिस्टेंस। जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ये राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव। कुछ लोग आपको कहेंगे कि फोकल तो इधर भी हो सकता है, अगर उधर से हम इंसिडेंट ले लें तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। आप ये वाला ही याद रखिए। तो राइट में जो भी है वो पॉजिटिव और लेफ्ट में जो भी है वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑलवेज इधर ही आप रखेंगे, तभी आपको इमेज इधर या इधर ऑब्टेंड होगा। रियल है तो इधर ऑब्टेंड होगा, वर्चुअल है तो इधर ऑब्टेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको इधर ही रखना होगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। एंड सिंस इट इज इन लेफ्ट, so object distance is negative. Next one is image distance. Then it is both positive and negative. When positive and when negative, then student, if image is real, don't confuse. All real images in convex lens are formed in this side. All real images in right. That's why distance is positive. And one virtual image in convex lens, one case is there in which image formed is virtual. Then virtual image forms in this side, right? Left. Then image distance is negative. Next one about height. Height of object. Since object is always above the principal axis and all the heights above the principal axis are positive. Now height of image, it is both positive and negative. Positive for virtual and negative for real, because the real image always inverted below the principal axis and virtual image always erect above the principal axis. Then all my dear student, don't be confused in this and this. मैंने यहां रियल में पॉजिटिव लिखा है और वर्चुअल में नेगेटिव।
लेकिन यहां वर्चुअल में पॉजिटिव लिखा है और रियल में नेगेटिव. सो डोंट बी कंफ्यूज. सिंस रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन राइट साइड, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बट इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, so the height is negative. Since the virtual image forms in the left, so the distance is negative, but always above the principal axis, so height is positive. So these are the rules of sign convention in convex lens. It is already written in your notes, so no need to write. Next one is, student, concave lens. Student, in concave lens, if we take incident ray from this side, then principal focus is here. So the focal length is negative because it is in left. Object again kept in left. इसमें तो कोई change ही नहीं. Image distance always negative, because concave lens always forms virtual images. No real images forms in concave lens. So always negative. No need to take positive sign. If there is concave lens, you have to take image distance always negative. Now after that, height is same. Always positive. Because there is virtual image, and virtual image always forms above the principal axis. So it is much easier than convex lens. Here is no confusion. F negative, U negative, V always negative. Only height of image is positive. Then you can see all three things are negative. तो ये थोड़ा इजी हो गया उससे. तो दिस इज द कॉनकेव लेंस. फिर से एक बात, चूंकि सारा इसमें लेफ्टी में आ गया, तो F नेगेटिव, V नेगेटिव, U नेगेटिव. बस HI पॉजिटिव होगा क्योंकि HO भी पॉजिटिव होगा. ये तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है. After that, student, lens formula. Then this is 1 by V minus 1 by U, 1 by F. Here V represent image distance, U represent object distance, and F represent focal. हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ लें कि ये सब क्या होता है. तो दिस वन एक ऑब्जेक्ट है ये. In this diagram, student, OA is the object distance from optical center to object. OA dash is the image distance from optical center to image, and OF is the focal length from optical center to principal focus. Then this one is the lens formula. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Derivation of this formula is excluded from the syllabus, so no need to discuss. Only you have to remember lens formula and its use. The next topic is magnification, and it is same as you study in mirror in class 9th. It is the ratio of height of image by height of object, HI by HO. And from derivation you can derive M is equal to V by U. It is also a formula of magnification. So this one is the definition. The ratio of height of image and height of object is known as image magnification. And this one is the derived formula with the help of figure, image distance by object distance. So in so many questions you can use this relation. HI by HO is equal to V by U.
Magnification explains so many important things, student, in which first is, if magnification is negative, it means image is real. If magnification is positive, it means image is virtual. Next one is, if magnitude of magnification is 1, it means size of image is same as size of object. Both have same size. If magnitude of magnification is greater than 1, it means size of image is greater than size of object. And if magnitude of magnification is less than 1, it means size of image is less than size of object. अब कुछ लोग करेंगे सर ये मैग्नीट्यूड बार बार आप क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं समझिए. इफ देयर इज ए क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज -2, व्हाट डज इट्स मीन? इन एनी केस अ लेंस, मैं बार बार मिरर बोल दे रहा हूं, लेंस बोलना चाहिए. लेंस प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन -2. What does it mean? There is, student, this minus sign shows that image is real. First thing, this minus sign shows that image is real, and this 2, it is the magnitude, student. If m is -2, then 2 is the magnitude. Magnitude always positive, no negative. तो m अगर -2 है यानी मैग्नीट्यूड 2 हुआ. माइनस सिर्फ इसके लिए है कि वो रियल इमेज है. तो मैग्नीट्यूड 2 है. मॉड m कोई आपसे पूछे इसमें तो 2 बताएंगे. तो ग्रेटर देन 1, तो साइज ऑफ इमेज ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, 2 टाइम्स ज्यादा है. क्वेश्चन आ जाए कि मैग्निफिकेशन +2 है, व्हाट डज इट्स मीन? प्लस मीन इमेज इज वर्चुअल, और यहां भी मॉड m 2 ही होगा स्टूडेंट. तो इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर. तो इसमें भी -2 भी है तो 2 टाइम्स लार्जर है, +2 भी है तो 2 टाइम्स लार्जर है. सिर्फ डिफरेंस है कि माइनस मीन्स रियल इमेज और प्लस मीन्स वर्चुअल इमेज. देन दीज आर द सम एक्सप्लेनेशंस. In your notes, so many questions are given related with this, so study all the things. Let me suppose that it is given m is 3/4. Question है कि m 3/4 है. Predict the name of lens. बताइए लेंस का नाम. तो आप सोचेंगे क्या m से लेंस का नाम कैसे पता चलेगा? तो पता चल जाएगा. 3/4 मतलब +3/4, तो लिखते जाइए. प्लस मीन्स वर्चुअल, मॉड m 3/4 है, इट मीन्स लेस देन 1. तो साइज ऑफ इमेज कम और साइज ऑफ लेस देन 1. मॉड m लेस देन 1, तो साइज ऑफ इमेज कम है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा. अब मिलाइए, ये किसी खासी लेंस की प्रॉपर्टी है. वर्चुअल इमेज और स्मॉलर. This one is concave lens. वर्चुअल और स्मॉलर सिर्फ कॉनकेव लेंस बना सकता है और कोई नहीं. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. m इज +2, नेम ऑफ लेंस बताइए. दिस इज कन्वेक्स लेंस, बिकॉज प्लस मीन्स वर्चुअल एंड 2 मीन्स 2 टाइम्स लार्जर. देन वर्चुअल एंड लार्जर, इट इज ओनली पॉसिबल इन कन्वेक्स लेंस. m is -1/2. Minus means real image, then no need to think. Real image always forms in convex lens. तो इस तरह का पूछा जा सकता है आपसे. These are related with magnification. Now the last one is power of lens.
Then student, you all know that either convex or concave. If there is convex, it converts the light ray. If there is concave, it diverts the light. So each lens have some capacity. Either it converge or it diverge. This capacity, this capability of lens is known as power of lens, and the formula of power is 1 by focal. SI यूनिट, अब फोकस है तो मीटर होगा, तो मीटर इनवर्स. और वन नेम इज फेमस, डायोप्टर. SI यूनिट ऑफ लेंस इज डायोप्टर. एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप पावर निकाल रहे हो, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर. तो दिस वन इज पावर. The capability of lens, either it converge or diverts the light. This is the power. Reciprocal of focal length, you can also say power is the reciprocal of focal length. More focal length, less power. Less focal length, more power. कभी कभी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, you have two lens, one is thicker and another one is thinner. Which have more power? Then your answer is thicker. याद रखना, जो मोटा ताजा आदमी होता है उसके पास ज्यादा पावर होता है, तो थिकर लेंस है मोर पावर. दिस वन. तो ये हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे थे. अब हम लोग 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जिसमें सारे टाइप्स आ जाएंगे. और इसके अलावा बुक में आपके न्यूमेरिकल्स है, तो उसको आप बनाइएगा, और जो दिक्कत होगी वो पूछिएगा. First numerical is कि an object of height 2 centimeter is kept at 60 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. Find a location of image. कहां बनेगा? नेचर ऑफ इमेज, कैसा बनेगा? सी साइज ऑफ इमेज, कितना बड़ा बनेगा. दिस वन इज द क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, एचओ गिवन है, और एचओ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और वो रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. दिस वन इज यू. ऑब्जेक्ट जितने पे रखा हुआ है लेंस से वो यू, और यू नेगेटिव होता है. ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा. अब आपको बताना है कि इमेज कहां बनेगा. भी तो फिर देखना कि यू एफ गिवन है, वी फाइंड करना है, तो वी कैन यूज लेंस फॉर्मूला डायरेक्टली. अगर इन तीनों में कोई 2 दिया है और तीसरा निकालना है, तो आपको सीधा लेंस फॉर्मूला यूज करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड वी, सो हम लोग इसको उधर कर देंगे, तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, और 1/f तो पहले से है. नाउ इट इज -60 and this is +20. If you find LCM, you got the LCM of 60, 20, 60. Then this is -1 and this is +3. 23 is 60. 3 minus 1, 2. Now 1/v is equal to 1/30. By cross multiply, you get v 30. So student, our first answer is here. Image is formed at a distance of 30 centimeter from the lens. और चूंकि ये प्लस आया है, यानी राइट साइड में है,
माइनस आता तो लेफ्ट, तो राइट साइड में है, दैट मीन्स इमेज इज रियल, तो दो आंसर तो आ गया। फॉर्म्ड इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर विच इज रियल इन्वर्टेड। अब आप साइज पता कर लीजिए। देन फॉर साइज वी कैन यूज दिस फॉर्मूला HI/HO V/U, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने। देन HI तो पता करना है, HO 2, V is 30 and U is -60. This cancel, this cancel. Here HI is 1. Means image is formed at 30 centimeter from the lens, which is real, inverted and 1 centimeter in size. It means smaller than object because the height of object is 2 centimeter. तो पूरा कंक्लूजन आ गया आपके पास। तो आप इस पूरे कंक्लूजन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड इमेज इज एट 20 सेंटीमीटर विच इज रियल, inverted and smaller than object. This one you can write. So this is your first problem. I think you have understand. समझ गए होंगे आप इसको। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसका टाइप 2, दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं। A convex lens of focal length 20 centimeter produced a real image which is 2 times larger than object. Find the location of object. ये एक टाइप कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20, तो प्लस में फोकल लेंथ लेंगे। एक रियल इमेज बना है जो 2 टाइम्स लार्जर है ऑब्जेक्ट से, तो HOX ले लेते हैं, और HI चूंकि 2 टाइम्स लार्जर है तो 2x लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे भाई? तो इमेज रियल है और रियल इमेज की हाइट माइनस में होगी। वर्चुअल लिखता तो प्लस ले लेते, और सिर्फ इमेज लिखता, न रियल न वर्चुअल, तो दोनों लेते, प्लस भी और माइनस भी, 2 बार बनाना पड़ता। अब आपको फाइंड करना है U। तो यहां आप डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको F तो है, U चाहिए, सॉरी V चाहिए, तभी आप U फाइंड कर पाएंगे, जबकि इसमें V नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाले फॉर्मूले से आपको मैं हिंट दे रहा हूं। तो HI है -2x, HOX V/. This cancelled, by cross multiply you can obtain V is -2. This is the most important process, you have to understand this. यहां से स्टार्ट करेंगे। After that you can use lens formula 1/V -1/1 1/. V कितना है? -2, तो लिख देते हैं। U तो है U, और ये 2U। What is the LCM? 2U, तो 2U से 2U तो पूरे कैंसिल, तो 1, और U से U कैंसिल, तो 2। अब चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये -3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U -30 आ जाएगा। U माइनस में आना भी चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इमेज बनेगा 60 पे, क्योंकि U 30 है।
तो ये एक टाइप होगा कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वो एक रियल इमेज प्रोड्यूस करता है जो कि 2 टाइम्स लार्जर है। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। तो उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि f20 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, तो इमेज डिस्टेंस -2x, क्योंकि इमेज रियल है, वर्चुअल रहता तो प्लस। इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए आपके IQ टेस्ट के लिए यही क्वेश्चन रहे और लेंस में कॉनकेव कर दिया है, तो आप तो हड़बड़ा के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही यहां कॉनकेव किया गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कॉनकेव रियल इमेज बना ही नहीं सकता है। सिंपल, दैट्स इट। तो आप अपनी IQ भी थोड़ा यूज करेंगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है ये गलत है, आप इसको वर्चुअल कर दीजिए, अब बनेगा। तो नहीं, अब भी नहीं बनेगा। अगेन द क्वेश्चन इज रॉन्ग। व्हाई? वर्चुअल इमेज विच इज लार्जर देन 2 times larger than object, it is quite impossible, not possible in the concave lens. Concave lens only forms smaller images. तो फिर गलत है, फिर नहीं बनाएंगे इसको, बोले हुए क्वेश्चन रॉन्ग है। हाँ, अगर एस लार्जर को स्मॉलर कर दे तब जाके ये सही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि f जो है वो -20, क्योंकि कॉनकेव है अब तो, HOX तो HIX/2, आधा, 2 times स्मॉलर है। अब ये वाला फॉर्मूला, तो HIX/2 और HOX, दिस कैंसल। यहां से आपका जो V है वो U/2 आ जाएगा। अब आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो V को U/2 लिखेंगे, बाकी तो मैथ्स में आप जानते हैं कि ये उल्टा हो जाता है। U का एलसीएम U, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, और 2 - 1 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो U -20, यानी ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अगर आपको 2 times स्मॉलर इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल फोकस में ही आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज 2 times स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो F हो गया -20, HOX हो गया और HIX/2 चूंकि वर्चुअल इमेज, तो HI/HO V/U हो गया। अब HI आप लेंगे X/2 और HOX, तो X कैंसिल हो गया, तो V आ गया U/2। लेंस फॉर्मूला यूज किए, V के जगह U/2 ले लिए, यहां -20 ले लिए, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/U, U का एलसीएम U हो जाएगा, ये 2 ये -1, तो 2 - 1 जो है वो 1 होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20, और आप इसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो -20/2 10 आ जाएगा, माइनस में ही आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो इस तरह के बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में हैं। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं कि नहीं मुझे एकदम पढ़ना है, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को बनाइए, बुक के क्वेश्चन आंसर्स को बनाइए, और जो दिक्कत हो उसमें आप आराम से उसको पूछिए। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूं। आप लोग इसको स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए, और जो प्रॉब्लम हो पूछिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।